اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس ہماری زندہ اصلی اور اپنی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع میں یہ فضل کیا کہ آج کے اس مقدس دن میں ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اگرچہ خداوند جسمانی طور پر ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، بہت سے ایماندار آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، لیکن خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع نے یہ وعدہ سچائی پر مبنی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جہاں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یسوع کے اس وعدے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یسوع کی اس قدرت اور اختیار پر بھی ہم یقین کرتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جہاں بھی آج آن لائن ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے، تو ان کے درمیان موجود ہے۔ ہر ایک کو خداوند اپنی موجودگی کے وسیلے سے برکت دے، ہمارے بھی ساتھ ہو یہ دعائے کہ لوگوں کی رہنمائی کر، میری رہنمائی کر، تیرے پاک ان کی معمولی کے وسیلے سے ہم تمام آن لائن دیکھنے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ خداوند تیری مدد مانگتے ہیں، ساری عبادت میں تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے خیالات اور دھیان تیری طرف لگ جائیں، اور یسوع کا نام آج کی عبادت کے وسیلے سے جلال پائے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Oh
हम सब अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमूआ है, और जब हम अपनी जुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान को जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमारे अकायद हैं उन पर मजबूत बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान करता हूँ खुदा पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, महसूस हुआ, उसके हुक्म को सुनाया, मसलूब हुआ, मर गया और मदफन हुआ, आगे अरबाब में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदा की तारीफ में हम ज़बूर 48 गाएंगे, ज़बूर नंबर 48, Psalm 48, तेरी हैकल दे विच गीत गाते रहते हुए हम। ज़बूर नंबर 48, ज़बूर नंबर 48 दूसरा हिस्सा।
نے یہ فضل کیا کہ آج ہم صحت کی حالت میں خدا کی حضوری میں موجود ہیں، اگرچہ اپنے اپنے گھروں میں بھی لوگ ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ ہم یہ انتظام کر سکتے ہیں کہ خدا کی عبادت فاصلے سے بھی عبادت میں شامل ہو سکیں اور فاصلے سے بھی اپنے گھروں سے بھی ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں گے، خدا نے ہمیں صحت دی ہے، اور دعا کریں گے کہ خدا کورونا وائرس کو ختم کرے تاکہ دوبارہ سے عبادات بحال ہو سکیں، لوگ بحال ہو سکیں، دنیا کے کام کاج شروع ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کی دعا کریں گے، خاص طور پر پاکستان میں امن و سلامتی کی دعا کریں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے، کشیدگی ہے، اس کے خاتمے کی دعا کریں گے، اور دعا کریں گے خدا اپنے فضل سے ہر ایک کام کو ممکن کرے، اور اپنی کلیسیا کے لیے بھی ہم خدا کی حفاظت مانگیں گے کہ ہماری کلیسیا ایمان میں بھی مضبوط ہو، کورونا وائرس سے بھی بچی رہے، اور گواہی دینے والی کلیسیا ہو سکے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ نہایت رہی مہربان بزرگ آسمانی باپ، بڑی معجزی درودی خاکساری کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ساری دی ہوئی نیکیوں برکتوں بخششوں کے لیے، تندرستی سے جامی کے لیے خدا، آج دن کے لیے خدا ہم بہت سارے لوگوں سے اچھے ناطے جو دن کو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ نہ سکے، یہ خاص تیری مہربانی دلوں کی زمین پر رکھا ہے۔ سفر کو مبارکی اور سلامتی کے ساتھ خدا اپنی حکمت میں یہ فضل بخشا کہ تیرے خادم کے ساتھ وائے کے ساتھ مل کر خدا آن لائن لوگوں کے ساتھ مل کر خدا تیری عبادت کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ خدا اس عبادت میں شروع سے آ کر تک اپنا پاک روح کثرت سے نازل کر، جو کچھ تیری حمد و ستائش کے لیے گایا بجایا جائے وہ غفور کی مانند تیرے حضور خدا تیرے زندگی بخش کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو خدا ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کی چراغ ہے۔ خدا فضل وقت دے کے خدا ہم اپنے دلوں کو خالی کریں، اپنے تیرے کلام کے لیے خدا اپنے آپ کو تیار کریں، تیرے خادم کے لیے خدا محنت کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے خدا تو اپنی کلیسیا کی اس روحانی خوراک کو جو خدا تو نے اس کے خدا خود یہ ذمہ داری بخشی کہ تیرے کلام کو خدا تیری کلیسیا سے شیئر کر سکے۔ خدا تو اپنے خادم کو اپنے پاک کی معمولی سے معمور کر، تاکہ خدا تیرے کلام کو تیرے روح سے خدا تیری کلیسیا کی اس خوراک کو شیئر کر سکے، اور تیری کلیسیا اس کلام کے وسیلے سے برکت پا سکے۔ خدا آج عالمگیر طور پر جب تیری کلیسیا تیرے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، خدا تو اپنی کلیسیا کی بڑی حفاظت کر، اپنی کلیسیا کو ہر قسم کی دہشت گردی سے شر پسند شریر لوگوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ خدا تیرے لوگ محفوظ ہوں، دادی کے ساتھ خوشی کے ساتھ خدا تیری عبادت کر سکے، تیری پرستش کر سکے۔ خدا اس ادارے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اس ادارے کو یہاں پر اس لیے قائم کیا کہ اپنے نام کی گواہی اور جلال ظاہر کرے۔ خدا اس کے انتظام چلانے والے اعلیٰ افسران کے لیے، تمام جونیئر سینئر اسٹاف کے لیے جو ادارے میں خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، خدا فضل بخشے کہ خدا تیری حکمت دانائی سے اس ذمہ داری کو جو خدا تو نے اس طرح سے خدا بخشی ہے کہ وہ اپنے اپنے کام کو سر انجام دیں، اور اپنے کاموں سے اپنی زندگیوں سے خدا تیری گواہی اور تیرا جلال ہے۔ تمام دنیا میں خدا جو مسیح لوگ رہتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں، ذاتانیوں میں ہے خدا، بیماریوں میں مبتلا ہے خدا، بے روزگار ہے خدا، محنت کرتے ہیں، تو اپنا رحم والا، اپنا قدرت والا، اپنا جلال والا ہاتھ بڑھا۔ خدا تو نے آزادی، خوشی اور سلامتی بخش، تاکہ خدا آزادی اور خوشی کے ساتھ
खुदा उन तमाम बरकत को जिनसे वो महरूम है हासिल करके खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जला दे। खुदा हम अपनी कमजोरियों का अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हम गुनहगार हैं, बातों बातों में खता करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तेरे हुक्मों को भूल जाते हैं। तू वफादार खुदा है, हमें भी वफादार बना और वफादारी के साथ अपने साथ रहने का फर्ज दे। खुदा अगर तू बनी नौ इंसान के गुनाह का हिसाब करे तो कोई बशर कामल नहीं और तेरी अदालत में ठहर नहीं सकता बाप। इसलिए खुदा अपनी मेहर कर, अपना रहम कर, अपना फजल कर, अपना तरस खबा हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, तमाम दुनिया से इस कोरोना वायरस की वबा को खत्म कर, लोगों को बहाल कर, लोग बहाल हों, रोजगार हासिल करें, खुशहाल हों और लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें, तेरी प्रशंसा करेगा। जो लोग खुदा इस बीमारी, इस वायरस की बीमारी के साथ से खुदा बीमार हैं, खुदा उनकी सेहतयाबी के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, उन्हें शिफा दे ताकि वो सेहतयाब होकर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जला देगा। इसराइल और फलस्तीन की जंग के लिए जो खुदा जारी है, खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, तू सुलह और सलामती का शहजादा है। खुदा हुक्मरानों को जो खुदा जंगो जदर में मसरूफ है, खुदा उन्हें हिकमत दानाई से बारा, अपनी मोहब्बत से बारा, अपने खौफ से बारा, अपने कलाम से बारा, ताकि वो दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा फिर बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे चरणों में झुककर मिन्नत करते हैं। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू बकाया हिस्से में खुदा तुम्हारी मदद कर, अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे ताकि हम खाली हाथ न लौटे, तेरी कलाम की बरकतों से माला माल हों और खुदा अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से तेरी गवाही, तेरा जलाल जाहिर करने का सबब बने। हमारी इस मिन्नत को सुन कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम के वसीला से मांगते हैं। खुदा की तारीफ में हम ज़बूर 139 गाएंगे, ज़बूर नंबर 39, ज़बूर नंबर 139 दूसरा हिस्सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं। ज़बूर नंबर 139 दूसरा हिस्सा, ज़बूर नंबर 39।
झुकाएं और हम जब ये दुआ करेंगे तो ख़ास तौर पर हम इस ईमान के साथ करेंगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह के वसीले से हम अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करेंगे कि खुदावंद हमें छुए, हमारे जिस्म से हर किस्म की कमजोरी को, जिस्मानी तकलीफ को खत्म करें, बीमारी को खत्म करें। हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए, हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी जिंदगी में मुआवजा करे और लोगों की जिंदगी में शिफा का काम। आए हम सभी दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा सही रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जिसमें कुदरत है, जिसके वसीले से मुआवजात होते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। और तेरा कलाम हमें सिखाता है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि हमारे पास यीशु नाम है जिसके वसीले से हम रहाई, मखलसी और निजात पाते, बातनी तौर पर धुल जाते हैं, पाक हो जाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के खून के लिए जो न सिर्फ बातनी तौर पर धोता है बल्कि हमारी जिस्मानी तकलीफों को भी खत्म कर देता है। यीशु के खून की कुदरत के लिए तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। बड़े ईमान के साथ खुदा हम अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। तो हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से यीशु का नाम हमारी जिंदगी में ज़रूर जलाल पाए। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शैतान शिकस्त पाए, बीमारियां शिकस्त पाए और हमारे जिस्म यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए और हमारी जिंदगी में मौजूद हो। खुदावंद तुम्हें छू शिफा दे, तेरी कुदरत हमारी जिंदगी में काम करे, यीशु का खून हमारी जिंदगी में काम करे। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा दे। खुदावंद दुआ करते हैं हमारे घरानों का एक एक फर्द यीशु के खून की कुदरत से पाक हो जाए। खुदावंद तू रहम कर, बीमारियों को, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां यीशु के नाम से हमारे घरानों से दूर हो जाए। खुदावंद इसी तरह हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनको भी तेरी हुजूरी में याद करते हैं तो अपने फजल से छू और शिफा दे। खासतौर पर खुदावंद दुआ करते हैं मिर्जा साहब के लिए, नासिर साहब के लिए, मिसेज नासर के लिए, मिसेज फरा आशर के लिए, यूनुस साहब के लिए, मिसेज मार्था के लिए, मिसेज सरवर के लिए, इसी तरह से बहन परवीन की दुआ करते हैं, मिसेज बशीर की दुआ करते हैं, बहन फौजिया की दुआ करते हैं, भाई शहजाद के लिए, भाई फिलिप की दुआ करते हैं, इसी तरह से भाई नईम तवसत के लिए दुआ करते हैं। तो अपने फजल से सबको छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबकी जिंदगी में मौजूदा हो। भाई आसर बशीर के लिए भी तेरी तरफ से मौजूदा शिफा मांगते हैं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए भी तेरा मौजूदा मांगते हैं। यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजूदा हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा वो करे, तेरी तरफ से औलाद की नेमत मिले। खुदावंद तू रहम कर और छू और शिफा दे। खुदावंद दुआ करते हैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। तू रहम कर खुदा, जो कोरोना पेशेंट से हमें शिफा दे। यीशु के नाम से कोरोना खत्म हो जाए। हम अपनी कलीसिया को तेरी हिफाजत में लेते हैं। हमारी कलीसिया का एक एक वर्ग चाहे वो किसी भी शहर में है, कहीं भी मौजूद है, तेरी पाक आग उसकी हिफाजत करे ताकि खुदावंद शैतान की कोई कुव्वत उसे नुकसान न पहुंचा सके, कोरोना वायरस उसे नुकसान न पहुंचा सके और तेरे लोग महफूज रहें। उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और मैं हमेशा दरखास्त करता हूँ जब क्वायर गीत गाती है तो उनके साथ उनकी आप भी गाया करें ताकि आप भी उन गीतों के साथ वाकिफ हो सके और आप भी उनका उनकी गाड़ी में शामिल हो सके।
سیفٹی ہیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں. اور اگرچہ بہت سے چرچز میں عبادت ہو رہی ہیں لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم آن لائن عبادت کریں. ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے خاندان کے ساتھ خدا کے گھر میں آنا چاہتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, لیکن میں آپ کی توجہ یسوع کے وعدے کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے بیچ میں ہوں. ہمارا یہ خوبصورت ایمان ہے کہ یسوع خود ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. اس لیے اس مشکل وقت میں جب آپ لوگوں کا محفوظ ہونا بڑا ضروری ہے, ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا. ہمارے لیے بھی مشکل ہے لیکن ہم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور سبھی آپ کے گھرانے کے افراد بھی محفوظ رہیں اور گیدرنگ سے بچا جائے. لیکن دعا میں ضرور اس بات کو رکھیں, بہت جلد ہم دوبارہ سے عبادت کا آغاز کرنے والے ہیں. خدا فضل کرے گا اور ہم پھر سے اکٹھے ہوں گے اور خدا کی عبادت کریں گے. اس ایمان میں بھی مضبوط رہیں کہ ہم دوبارہ سے خدا کے گھر میں آئیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں تاکہ جلد سے جلد دوبارہ سے عبادت کی جگہ ہو سکے. اگر آپ میں سے کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے, جسم میں بخار یا کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے, تو ضرور ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں. اور اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیں, مجھ سے رابطہ کریں. آپ میں سے تقریباً سبھی کے پاس میرا نمبر موجود ہے اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی کلیسیا کی طرف سے بھی پوری کوشش کریں کہ آپ کی مدد بھی کریں, دعا میں بھی آپ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ہو سکے تاکہ آپ کوئی شفا کے لیے مل کر دعا کر سکیں. آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت کو دیکھیں گے. کلام مقدس کے لیے نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک. کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. بک آف ایکٹس چیپٹر 2 ورسز 1 to 13. کلام مقدس کی تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی بہن فوزیہ سلمان کرے گی. آج کی تلاوت اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور پہلی 13 آیات. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ہیں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے, دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹیمیا اور یہودیہ اور پرتگیا اور پونتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف سے ہے, اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں, مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا, یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. خدا ان کے پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے کا خدا ان کی برکت کرے. خدا ان کے کلام کو سننے سے پہلے ہم گیت نمبر 367 گائیں گے.
छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। गीत नंबर 367 और इसके सही से खुदावन के कलाम को सुनने की खूबसूरती याद करेंगे। गीत नंबर 367 छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। Thank
आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कादिर खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि आज हम इबादत के लिए इकट्ठे हो सके। मुख्तलिफ जगहों पर ऑनलाइन जो हमारे साथ शामिल हैं उन पर भी, और यहाँ पर जो मौजूद हैं उन पर भी तेरे पाक रूह की मामूली मांगता हूँ। तो हम में से हर एक को पाक रूह से मामूल कर, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बाइस हो। उसी यीशु के नाम से आमीन। आज का दिन ईमानदारों के लिए कलीसिया के लिए बड़ा अहम दिन है, और आज के दिन को हम ईद पेंटिकोस्ट के नाम से याद करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ दो ही ईदों को याद रखते हैं, क्रिसमस और ईस्टर, और बहुत से ऐसे मौक़ों को भूल जाते हैं जो मसीही ईमान में बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारी कलीसियाई जिंदगी में भी बड़ी अहमियत है। ईद पेंटिकोस्ट का दिन, सबसे पहले मैं एक सीधी और सादा सी बात आपके साथ रखूंगा कि ये वो दिन है जिस दिन जमीन पर पहली कलीसिया कायम हुई। यानी कलीसिया का आगाज जो है वो आज के दिन ईद पेंटिकोस्ट के दिन हुआ। आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है ये भी ईद पेंटिकोस्ट के दिन का आगाज बयान करता है। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया। उससे आगे लिखा कि उस दिन हुआ क्या? उस दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। शागिर्द एक जगह जमा थे और दुआ कर रहे थे। आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। उन्होंने से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। यानी ईद पेंटिकोस्ट के दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ। और ईद पेंटिकोस्ट का दिन, हम में से बहुत से लोग इस लफ्ज को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, इस दिन को भूल जाते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। रूहुल कुद्स के बारे में हम जानते हैं, रूहुल कुद्स पर ईमान भी है, रूहुल कुद्स मांगते भी हैं, रूहुल कुद्स के लिए हम गीत भी गाते हैं, रूहुल कुद्स की शुक्रगुजारी भी करते हैं। लेकिन ये हमारे ज़हनों में से अक्सर निकल जाता है कि रूहुल कुद्स नाज़िल किस तरह हुआ, किस दिन हुआ। और आज का जो हवाला है वो ये बताता है कि किस दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और उसने क्या किया। रूहुल कुद्स के सम्राट जो हैं वो कलीसिया ने कैसे देखे और एंजॉय किए, और उसकी बरकत क्या ईमानदारों पर नाज़िल हुई। ये जो ईद पेंटिकोस्ट का लफ्ज है ये रूहुल कुद्स के नाज़िल होने के बाद नहीं शुरू हुआ, बल्कि रूहुल कुद्स ईद पेंटिकोस्ट के दिन नाज़िल हुआ। यानी ईद पेंटिकोस्ट पहले से ही यहूदी मनाते थे, और उस दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, और इसलिए रूहुल कुद्स के नाज़िल होने वाले दिन को मसीही भी ईद पेंटिकोस्ट के तौर पर मनाते हैं। यानी ये वो ईद है जो यहूदी भी मनाते हैं, और खासतौर पर 3 ईदें यहूदियों की मजहबी जिंदगी में बड़ी अहम थी। ईद फसा, ईद पेंटिकोस्ट और खैमों की ईद। और जो ईद पेंटिकोस्ट है ये ईद फसा के बाद मनाई जाती थी। ईद फसा के दूसरे दिन से लेकर 50वें दिन ये ईद मनाई जाती थी। और ये जो पेंटिकोस्ट का लफ्ज है ये असल में इसी लफ्ज को 50 को जाहिर करता है। ये पेंटेकोस्टे यूनानी ज़बान का लफ्ज है। पेंटेकोस्टे हेमेरा का मतलब है डे, दिन। यानी पेंटिकोस्ट का दिन 50वां दिन, 50th डे। और ये ईद फसा के दूसरे दिन से लेकर 50वें दिन तक गिनकर उस दिन ये ईद मनाई जाती थी। और इसी तरह से हम भी ईद फसा के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए, उनके जिंदा होने से 50वें दिन इस ईद को मनाते हैं। और यहूदी भी ईद फसा के दूसरे दिन से लेकर 50वें दिन तक, जब 50वां दिन आता था, यानी पेंटेकोस्टे जो 50th का जो अदद है, यानी 50वें का जो लफ्ज है, उस दिन को ये ईद मनाते थे। और इसे जब इस ईद को मनाया जाता था तो इसे ये कहा जाता था, खरूज की किताब में खुदा ने इसका हुक्म दिया। खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया है पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। इसे फसल काटने की ईद भी कहते हैं, फलों की पहले फलों की भी ईद कहा जाता है। और यहूदी शुक्रगुजारी के तौर पर इस ईद को मनाते थे कि उन्होंने जो मेहनत की है खुदा ने उसमें बरकत डाली है और फल आया।
شکر گزاری کے طور پر یہ خوشی کا دن منایا جاتا تھا، اور جس دن روح القدس نازل ہوا اس دن بھی اسی عید کو منایا جا رہا تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کلیسیا کی ابتدا ہوئی، لیکن یہ اصل میں روح القدس کے نازل ہونے کا دن ہے، جس دن یسوع کے وعدے کے مطابق روح القدس نازل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے وعدہ کیا، اسی طرح مقدس یوحنا نے بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ اس کے وسیلے سے روح القدس نازل ہوگا۔ اسی طرح یوئیل نبی کی کتاب میں روح القدس کے نزول کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ جوان اور بوڑھے جو ہیں وہ رویا دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے، نبوت کریں گے۔ روح القدس کے کام کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی، یعنی یہ کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے کہ عید پینتیکوست کے دن اچانک روح القدس نازل ہوا اور شاگردوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا، ایک دم وہ حیران ہو گئے، لوگ بھی حیران ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یسوع نے وعدہ کیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پیشین گوئی کی، یوئیل نبی نے بھی پیشین گوئی کی، اور پرانے عہد نامے میں بھی ہم خدا کے روح کا کام لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ خدا کا روح جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں میں، اس کے مقدسین کی زندگی میں نازل ہوتا رہا، اور اس کے وسیلے سے خدا کے لوگ مختلف کام سر انجام دیتے رہے، مختلف معجزات رونما ہوتے رہے، نبوت ہوتی رہی، خدا کا پیغام لوگوں کو سنایا جاتا رہا۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں یسوع نے بھی وعدہ کیا، اور اس سے پہلے ہم اگر مقدس متی کی انجیل کے تیسرے باب کی 11ویں آیت میں مقدس یوحنا کی پیشین گوئی کو دیکھیں تو مقدس یوحنا نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یوحنا نے یسوع کے بارے میں کہا کہ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اسی طرح مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے خود شاگردوں کو یہ بتایا، اپنا وعدہ دیا، اور اس نے یہ وعدہ کیا مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے 24ویں باب میں 49ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے ہو۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں بھی خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے 8ویں آیت میں اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں یہ کہا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے ایک قوت کا وعدہ کیا۔ اسی طرح ہم اگر یوحنا کی انجیل کے 4ویں باب میں دیکھیں تو یسوع نے ایک مددگار کا وعدہ کیا، اور اس کو بھی یسوع نے جو نام دیا وہ روح حق کا نام دیا۔ یہاں پر روح القدس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اسی طرح لوکا کی انجیل میں بھی قوت کا لفظ جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے روح القدس کے ساتھ مددگار کا لفظ استعمال کیا، پیراکلیٹوس یونانی زبان میں یہ لفظ ہے جس کے 3 معنی ہیں: مدد کرنے والا، ہیلپر، انٹرسیسر سفارش کرنے والا، اور ایڈوکیٹ وکالت کرنے والا۔ ایڈوکیٹ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، وکیل، یعنی وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کے بہاف پر، اس کے حق میں بولتا ہے، دلیلیں دیتا ہے تاکہ ملزم جو ہے وہ بچ سکے۔ اور روح القدس کے جو لفظ ہے، یونانی لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوگا مددگار کے لیے، اس کا پہلا اس کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری وکالت کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اس کے بعد انٹرسیسر کا لفظ یعنی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، اور مددگار کے طور پر اس دنیا میں آئے۔ اور یسوع نے یہ وعدہ اپنے لوگوں سے کیا، اور روح القدس عید پینتیکوست کے دن جب نازل ہوا تو ایک قوت کی طرح سے، یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں۔ دوسری آیت میں لکھا، آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یعنی بڑی پاور کے ساتھ کچھ وقوع پذیر ہوا، اور یسوع نے اس کے لیے قوت کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور یہاں بھی کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ جو قوت کا لفظ ہے یہاں پر اس کا جو اثر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا، یعنی بڑا شور ہو گیا۔ کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس میں بہت شور ہوا۔ اور قوت کا جو لفظ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈائنامائٹ کا لفظ سنا ہوگا۔ ڈائنامائٹ جب سڑک بناتے ہیں تو پہاڑوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بارودی مواد ہے۔
ये ऐसा बारूदी मवाद है जो कि चीजों को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तबाह करने का लफ्ज हमारे डिक्शनरी में, हमारे अल्फाज में बड़ा खतरनाक है, तबाह करने का लफ्ज। लेकिन असल में डायनामाइट का जो आज का इस्तेमाल है वो ये है कि पहाड़ों को तोड़कर और उसके जरिए से जो पत्थर हासिल हो उसको इस्तेमाल किया जा सके, सड़कें बनाने के लिए या और तामीराती मकसद के लिए। और जो कुव्वत के लिए लफ्ज है वो डुनामस से ये लफ्ज डायनामाइट निकला है, यानी ऐसी कुव्वत जो तब्दीली लाती है, ऐसी कुव्वत जो किसी चीज में तब्दीली लाकर उसको कारआमद बना देती है। पहाड़ पर जो पत्थर हैं, जब डायनामाइट से तोड़ा जाता है तो वो किसी काम के नहीं, बस बिखर गए पत्थर। जब धमाका होता है और उसके बाद पत्थर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उस वक्त तक वो किसी काम के नहीं। लेकिन उसके बाद वही पत्थर बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाता है। सड़क बनाने के लिए, मुख्तलिफ तामीराती कामों में, सैलाब के लिए, वो आपने कभी देखा हो नहरों के किनारे पर, दरियाओं के किनारों पर पत्थर को लगाया जाता है ताकि जमीन का कटाव रोका जा सके, पानी बाहर ना आ सके। यानी वही पत्थर जो कारआमद नहीं है, उस कुव्वत के जरिए से, डायनामाइट के जरिए से उसको कारआमद बनाया जाता है और उससे बहुत से काम लिए जाते हैं। इसी तरह रूहुल कुद्स से कुव्वत, यीशु ने कहा कि तुम्हें कुव्वत मिलेगी, कुव्वत का लिबास मिलेगा, तुम पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और तुम यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु ने रूहुल कुद्स की कुव्वत देने का वादा किया ताकि ये कुव्वत ईमानदारों को कारआमद बना सके इस दुनिया के लिए, दुनिया के इंसानों के लिए, हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक खूबसूरत तब्दीली का बायस बन सके। और रूहुल कुद्स का ये काम कि वो इंसानों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा करता है। कि ऐसी पावर है, ये ऐसी कुव्वत है जो कि संभालती है। और यहाँ पर लिखा है कि जब सारा घर जब वो बैठे थे वो गूंज गया। गूंज का जो लफ्ज हमारे लिए है इसका मतलब है वाइब्रेट हो गया। हम तो इसको गूंज के लफ्ज में बड़ी इको है, आवाज वापस आई है, या कांप गए। गूंजने से हम बहुत से अल्फाज मुराद ले सकते हैं। एक गूंज पैदा हुई, इको पैदा हुई, कांप गया, हमारे कानों में एकदम 2 दफा आवाज सुनाई दी या वाइब्रेशन हो गई। लेकिन यहां पर जो गूंज का जो लफ्ज है, इसके लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल है, इसका मतलब है फर्निश करना, टू फिल समथिंग, टू फर्निश समथिंग, यानी किसी चीज को सजा देना। और जो हमने दुनामिस का, कुव्वत का मतलब देखा है, जिस तरह से वो कारआमद बना देता है चीजों को, इसी तरह से यहाँ पर जो गूंज का लफ्ज इस्तेमाल है वो यही है कि जब बड़ी आजोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, उससे सारा घर गूंज गया, यानी सारा घर मामूर हो गया, भर गया, फर्निश हो गया। यानी रूहुल कुद्स ने उस जगह को फर्निश कर दिया, उस जगह को खूबसूरत बना दिया। उस खूबसूरत कैसे बने कि उन लोगों पर आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। ये सजना था उनकी जिंदगी में, सजावट थी, ये खूबसूरत सजावट थी जिससे बहुत सी कौमों के लोग, तकरीबन 15 से 16 कौमों के लोग वहां पर आए हुए थे, जो कि हर एक कहता है कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। खुदा के कलाम की मुनादी हो रही थी, हर एक को अपनी जुबान में खुदा की मुनादी की खुशखबरी की समझ लग रही थी। किस तरह से खूबसूरत सजावट वहां पर हुई। एक ऐसी जगह जो कि बहुत से कौमों के लोग वहां पर आए हुए ईद मनाने के लिए, वो लोग उस खुशखबरी को सुन रहे हैं जो इस दुनिया की निजात का बायस है। वो खुशखबरी जिससे दुनिया में इंसानों की जिंदगियां बदल सकती हैं, वो खुशखबरी जिससे दुनिया खुदा की मोहब्बत से आगाह हो सकती है, वो खुशखबरी जिससे दुनिया निजात दहिंदा के बारे में जान सकती है। ये रूहुल कुद्स के वसीले से मुमकिन हुआ। रूहुल कुद्स ने ईमानदार शागिर्दों की जिंदगी में ये खूबसूरत तब्दीली को पैदा किया कि ईमानदार उस कुव्वत के वसीले से न सिर्फ खुद बदल जाए, वो गैर जुबानें बोलने लगे और उन गैर जुबानों की कुव्वत के जरिए से, नेमत के जरिए से बहुत से लोग खुदा की खुशखबरी को जानने के काबिल हो सके। हर एक शख्स अपनी जुबान में उस खुशखबरी को सुनने लग गया जो वो बोल रहे थे, खुदा की बातों को जो वो कर
रहे थे वो लोग सुनने लगे। ये रूह कुदस ने सजाने का काम किया, खूबसूरती का काम किया। ईमानदारों के लिए रूह कुदस एक नेमत। इसी तरह से रूह कुदस का नज़ूल कलीसिया के लिए ये बरकत लाया कि कलीसिया इस कुव्वत को पा सके जिससे वो दुनिया को बदल सकती है, जिससे उसकी अपनी जिंदगी बदल सकती है, जिससे वो इंसानों की जिंदगी को बदल सकते हैं। इससे रूह कुदस की कुव्वत जो है वो ईमानदारों की एक बड़ी बरकत जो कि यीशु के वादे के मुताबिक नाज़िल हुई ताकि लोग उससे बरकत पा सके। हमें सारे उस कुव्वत को लेने की जरूरत है। और खासतौर पर एक खुदा के खादर में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि रूह कुदस का नज़ूल जो है उसने पैदाइश की किताब के 11वें बाब की लानत को खत्म कर दिया। पैदाइश की किताब के 11वें बाब में अगर आपको याद हो तो बाबल का बुर्ज जो बनाया जा रहा था तो उस वक्त क्या लानत इंसानों को मिली, जुबानें बदल गई, जुबानों में इख्तिलाफ हो गया। उसके बाद कोई भी किसी की बोली को समझ नहीं सका, कोई भी किसी की जुबान को समझ नहीं पाया और लोग मुंतशिर हो गए, परागंदा हो गए, फैल गए। उससे पहले लोगों ने मिलकर इरादा किया कि वो आसमान तक एक बुर्ज बनाएंगे और बाबल का बुर्ज बनाते हैं, आसमान का बुर्ज आसमान तक जाएगा ताकि हम देखें तो उसे खुदा की चीज क्या है। इरादा उनका यह था कि खुदा क्या है, हम उस तक खुद पहुंच सकते हैं। खुदा अगर हम तक नहीं पहुंचता, हम नहीं जानते खुदा को, तो हम बताते हैं कि हमें बड़ी अकल है, हम खुदा के पास खुद पहुंच जाएंगे, खुदा को दिखा देंगे कि तुम कोई ऐसी चीज नहीं, हम तेरे पास आ सकते हैं। इसी वजह से खुदा ने इख्तिलाफ डाला था। ये नहीं है कि खुदा तरक्की पसंद नहीं करता कि लोगों ने तरक्की की है तो खुदा चाहता है कि लोग तरक्की ना करें, लोगों के पास आज साजिशें हैं तो खुदा को ये साजिशें पसंद नहीं कि हमारे घर में एयर कंडीशनर लगा है, हम ठंडा पानी फ्रिज से पीते हैं, तो खुदा को ये साजिशें पसंद नहीं है। उनका जो मकसद है बाबल का बुर्ज बनाने का वो ये था कि वो खुदा को बता सके कि हम भी तेरे बराबर ही हैं, हम वो कर सकते हैं जो तू हमारे लिए नहीं करना चाहता। तो खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तिलाफ डाल दिया और वो परागंदा हो गए, वो एक दूसरे की बोली को नहीं समझते थे। लेकिन रूहुल कुदस के नज़ूल ने उस लानत को खत्म कर दिया ताकि दोबारा से वही मुख्तलिफ कौमें जो मुख्तलिफ जुबानें बोलती हैं और एक दूसरे की जुबानों को समझ नहीं सकती, रूहुल कुदस के वसीले से वो खुदा को जान सके, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, खुशखबरी के जरिए से दोबारा से खुदा की पहचान में हो सके। जिस तरह से वो पहचान करना चाहते थे खुदा की, खुदा ने उन्हें सजा दे दी, उन्हें अलग कर दिया, उनकी जुबानों में इख्तिलाफ डाल दिया। लेकिन यहाँ पर पैदाइश की किताब में रूहुल कुदस के नज़ूल के वसीले से दुनिया में ऐसी तब्दीली आई कि वही लोग जो सजा के तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे वहां पर एक ही जुबान में समझने लग गए। ये रूहुल कुदस की बरकत है। रूहुल कुदस के नज़ूल के वसीले से खुदा ने उस लानत को खत्म किया कि लोग खुदा को इसके जरिए से जान सकें। और रूहुल कुदस के बारे में जब हम इसकी जिम्मेदारियों को देखते हैं, यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब, 15वां और 16वां बाब रूहुल कुदस की इस दुनिया में जो जिम्मेदारियां को बयान करता है कि रूहुल कुदस की जिम्मेदारियां क्या हैं। हमने रूहुल कुदस को बड़ा महदूद किया है। रूहुल कुदस को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। रूहुल कुदस की तशरीह भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। रूहुल कुदस के बारे में बयान भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं। रूहुल कुदस को कोई दुरुस्त तौर पर समझना चाहे तो उसको हम रोक देते हैं। तो रूहुल कुदस के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हम इसको भी गलत तरह से तशरीह करके अपना फायदा हासिल कर लेते हैं। यानी हमने खुदा को और खुदा की तालीम को महदूद करने की कोशिश की और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। और रूहुल कुदस के साथ भी हम ऐसे करते हैं। रूहुल कुदस खुदा है। तस्लीस का तीसरा कानून है, खुदा की कुदरत और अख्तियार को अपने अंदर रखता है। और हम इसके यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब से देखना शुरू करते हैं। 14वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये बार बार जब रूह पाक उतर आ, ये हम खुदा के कलाम की नफी करते हैं। असल में लिखा है कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। रूहुल कुदस ईद पेंटेकोस्ट के दिन नाज़िल हुआ और वो कलीसिया के दरमियान है, कलीसिया के अंदर है, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर है।
इसलिए हमें उतरने की बात नहीं करेंगे। रूह कुदस उतरा, वो उतरता नहीं है, वो एक दफा नाज़िल हुआ, हमेशा के लिए ईमानदारों के साथ मौजूद है। इसलिए हमें इन अल्फाज पर गौर करते रहना चाहिए। और ईमानदारों की जिंदगी में रूह कुदस किस तरह से काम करता है, किस तरह से अहम है। ईमानदारों की जिंदगी में 3 बातें बड़ी अहम हैं। यीशु का तजस्सुम, इनकारनेशन, और उसका मतलब है खुदा हमारे साथ। तजस्सुम के जरिए से खुदा हमारे साथ आ गया, और इमैनुएल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इसलिए ईमानदार की जिंदगी में पहला इवेंट तजस्सुम बड़ा है हमें ईमान में, कि खुदावंद ने जिस्म इख्तियार किया और खुदा इंसानों के दरमियान आया। उसके बाद खुदावंद की मसलूबियत, यीशु की मसलूबियत जो है, ये एक अहम हमारे ईमान का हिस्सा है, क्रूसिफिक्शन। और इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे लिए, गॉड फॉर अस। मसलूबियत के जरिए से खुदा ने ये बताया कि खुदा इंसानों के लिए है। उसने अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी शिफा की खातिर सलीब पर जान दे दी। और क्रूसिफिक्शन हमें ये एहसास दिलाती है कि खुदावंद मेरे और आपके लिए है। उसके बाद पेंटिकॉस्ट का जो दिन है, जो ईद पेंटिकॉस्ट है, रूह कुदस का नज़ूल है, ये भी हमें एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बताता है कि खुदा जो है, गॉड इन अस, खुदा हमारे अंदर है, गॉड इन अस। क्योंकि यहाँ पर जब यीशु ने ये वादा किया तो उसने कहा कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और उसके बाद कहा कि यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। गॉड इन अस, ये तीसरा हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। पहला ये है गॉड विद अस, दूसरा गॉड फॉर अस, यानी उसने हमारी अपनी जान दी, और तीसरा गॉड इन अस, यानी उसने रूह कुदस के वसीले से हमारे अंदर रहना शुरू कर दिया। और ग्रंथियों के खत में भी हम यही देखते हैं। ग्रंथियों का पहला खत और उसके 6ठे बाब में हम इसी ईमान को देखते हैं। ग्रंथियों का पहला खत और उसके 6ठे बाब में हम खुदा के पाक रूह के अपनी जिंदगियों में काम करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल जो है, वो रूह कुदस के बारे में बयान करता है 19 बाब और 19वीं और 20वीं में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करोगे। यहाँ पर पौलुस रसूल ने भी यही कहा कि रूह कुदस जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए बुलाने की जरूरत नहीं है भाई से कि भाई उतर आ, भाई उतर आ, उतरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, यीशु पर ईमान ले आते हैं, तो वो हमारे अंदर है। हम वापस यूहन्ना की इंजील के 14वें 15वें 16वें बाब की तरफ जाएंगे और कुछ रूह कुदस के काम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसकी यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वें आयत में लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। रूह कुदस हमें यीशु की बातों को सिखाता है। फिर उसके बाद यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब में चले जाते हैं। यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। यहाँ पर 16वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत रूह कुदस की एक और जिम्मेदारी को बयान करते हैं कि रूह कुदस इस दुनिया को गुनाह के बारे में आगाह करता है, रास्तबाजी के बारे में आगाह करता है और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराता है। और आगे गुनाह बताएगा, गुनाह है क्या? गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते।
रूह कुदस दुनिया को आगाह करता है कि दुनिया को यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है, और जो यीशु पर ईमान नहीं लाता यही रूह कुदस के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह है। जब कहते हैं ना कि रूह कुदस के खिलाफ जो गुनाह है वो कभी माफ नहीं किया जाएगा, रूह कुदस के खिलाफ गुनाह ये है कि जब रूह कुदस हमें बताए कि हमने गुनाह किया और हम माफी ना मांगे, रूह कुदस बताए कि यीशु निजात देगा, हम कहेंगे नहीं यीशु निजात देगा नहीं है, हम उसका इनकार करें। खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह का जो स्टैंडर्ड है और सजा का जो मेयार है वो ये है कि जो यीशु पर ईमान नहीं लाता वो सजा का, उसका सजा का हुक्म हो चुका है। और रूह कुदस के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जब हम रूह कुदस की बात नहीं मानते और यीशु पर ईमान नहीं लाते। यहाँ पर यीशु ने कहा कि गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, यानी रूह कुदस के खिलाफ गुनाह ये है कि हम रूह कुदस की बात को ना माने। और रूह कुदस का काम क्या है कि वो यीशु की गवाही देता है, यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है और यीशु की गवाही के वसीले से लोगों को ईमान लाने के लिए तैयार करता है। और अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो वो फिर सजा पाता है, और ये ही गुनाह है रूह कुदस के खिलाफ। और उसके बाद रास्तबाजी और अदालत के लिए भी कसूरवार ठहराता है, यानी रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं तुम मुझे फिर ना देखोगे। रूह कुदस ईमानदारों को आगाह करता है कि हम रास्तबाज नहीं, हम गुनहगार हैं। वो हमें इतला देता है, हमारे ज़मीर को जब जोड़ता है कि हम गुनहगार हैं, हमारे पास अपनी रास्तबाजी नहीं है, हमारे पास सिर्फ यीशु के वसीले से ही रास्तबाजी आ सकती है। और अदालत के बारे में भी कसूरवार ठहराता है। रूह कुदस ही हमें अदालत के क़ुव्वत करते हैं, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। यानी रूह कुदस की सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो यीशु के इर्द गिर्द, यीशु के लिए लोगों को तैयार करना, यीशु की गवाही देना, यीशु के नाम को जलाल देना, लोगों को यीशु के पास लाना, लोगों के ईमान को मजबूत करना, ये सारा कुछ यीशु के गिर्द होगा। और रूह कुदस वही काम करके 12वें बाब में उसकी 3री आयत में लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। यानी रूह कुदस के बगैर हम ईमान ही नहीं ला सकते, रूह कुदस के बगैर हम यीशु पर ईमान ला ही नहीं सकते। रूह कुदस ही वो चैनल है, वो कुव्वत है जो हमें ईमान लाने के लिए तैयार करती है और हमें बदल देती है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये वो कुव्वत है जो इंसान को बदल देती है, उसकी जिंदगी को बदल देती है और उसकी जिंदगी के कामों को बदल देती है। उसका नया रुख नजर आ जाता है, कि नई तस्वीर सामने आ जाती है। इसलिए यहां पर पौलुस ने कहा कि कोई रूह कुदस के बगैर कह नहीं सकता कि यीशु खुदावंद है। यानी जो यीशु को खुदावंद कहता है उसे इस ईमान में मजबूत होने की जरूरत है कि उसके पास रूह कुदस है, उसके अंदर रूह कुदस है। इसलिए कभी भी इस बात से घबराए ना जब आपको कोई ये दावा कर दे कि क्या देखो तो रूह कुदस आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इस बात में खुदा के कलाम से रुजू करने की जरूरत है, लोगों की बातों के बजाय। खुदा का कलाम ये कहता है कि रूह कुदस के बगैर कोई ये कह नहीं सकता कि यीशु खुदावंद है। अगर हम यीशु पर ईमान में मजबूत हैं, यीशु की तालीम को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं, यीशु के कामों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रूह कुदस आपके अंदर है, वो काम कर रहा है, वो आपकी जिंदगी को बदल रहा है, उसे खूबसूरत फर्निश कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है, उसको दूसरों की जिंदगियों के लिए कारआमद बना रहा है। लेकिन इस रूह कुदस की नेमतों का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है जो हमारी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को और खूबसूरत मजबूत बना देती है। जो रमाल की किताब के दूसरे बाब में गूंज का लफ्ज इस्तेमाल होना, फर्निश करने का, फिल करने का, मामूर करने का, वो यही है कि रूह कुदस जब हमारे अंदर है तो उसकी नेमतों का हमारी जिंदगी में काम, जिसके जरिए से लोग बरकत पाए। हमारी ग्रंथियों के नाम पौलुस के पहले खत के 12वें बाब में 9 नेमतों का जिक्र, 4th आयत से लेकर 11वीं आयत तक, और ये हमें और भी क्लियर कर देती है कि हमारे पास रूह कुदस है या नहीं। इसी तरह जैसा मैं 3री आयत में से बताया कि रूह कुदस के बगैर कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है, यानी यीशु पर ईमान रूह कुदस के वसीले से है। और उसके बाद यहाँ पर नेमतों का जिक्र है, ये 9 नेमतें हैं जहाँ पर हम 8वीं आयत से शुरू करते हैं। क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है
اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس لیے اس میں دو طرح کے رویے آ جاتے ہیں، یا تو جس کے پاس قوت نہیں ہے اسے کمتر سمجھنا، اور جس کے پاس کوئی نعمت ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس کو کمتر سمجھنا، جس کے پاس یہ نعمت ہے اس کا دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا حسد آ جانا، یا جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ جس کے پاس ہے اس سے حسد کرنا شروع کر دے۔ اسے اس حوالے میں سے مدد لینے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ہر ایک شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، نقصان کرنے کے لیے نہیں، یعنی کسی کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں، روح کی نعمتوں کا دعویٰ کرنے والا نہیں، کہ یہ روح کا ظہور جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، جس سے کسی کو برکت ملے، اور یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے برکت کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اس میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو انسانوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو شیطان کو اور شیطان کے منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہیں، شیطان کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن یہ نعمتوں سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کسی کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں تیرے پاس نعمت نہیں ہے، تیرے پاس روح القدس نہیں ہے، تیرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تیرے پاس روح القدس نہیں ہے، ہم پھر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ خدا کے نزدیک جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دوسروں میں بھی بعض اوقات اسی طرح سے کمپلیکس پیدا کر دیتے ہیں، دوسروں میں بھی بعض اوقات احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ واقعی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس روح القدس نہیں ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کو اس حصے میں سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ روح القدس ہمارے اندر ہے کیونکہ ہم نے یسوع پر ایمان رکھا ہے، یسوع پر ایمان کے وسیلے سے روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ روح القدس ہمیں آگاہ کرتا ہے، روح القدس ہمیں تیار کرتا ہے، اور جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم روح کی نعمتوں کی آرزو رکھیں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت لکھی ہے، میں لکھا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت پر۔ یعنی پالوس نے ان نعمتوں کی آرزو رکھنے کے لیے کہا اور ہمیں رکھنی چاہیے، ہمیں روح کی قوت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ترقی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روح کا کام ہے، یہ سب تاثیریں ایک ہی روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس میں کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا دوسرے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہم میں سے ہر ایک ایماندار کو روح کی نعمتوں کی آرزو رکھنی چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نعمتیں ہوں، کوئی ایک نعمت مل سکتی ہے، 2 مل سکتی ہے، 3 مل سکتی ہے، ساری مل سکتی ہیں، لیکن روح میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آرزو رکھنے اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا روح کا جو فائدہ پہنچانے کا کام ہے وہ روح کا پھل ہے۔ یہ روح کے پھل نہیں ہے، روح کا پھل ہے۔ دیکھ لیں غلاطیوں کے خط کے 5ویں باب میں، غلاطیوں کا نام پالوس رسول کا خط اس کا 5واں باب، اور اس کے ہم جب جاتے ہیں 22ویں آیت میں لکھا مگر روح کا پھل، سنگولر، ایک ہی پھل ہے، واحد ہے۔ جب ہم روح کے پھل نہیں، ہم اکثر جب بات کرتے ہیں روح کے پھل، ایک ہی پھل ہے۔ جیسے ایک فروٹ میں بہت سی خوبیاں تھیں، بڑے وٹامنس ہوتے ہیں، ایک فروٹ میں اے وٹامن بھی ہے، بی بھی ہے، ڈی بھی ہے، بہت سے وٹامنس ایک میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسانی زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں جو روح کا پھل ہے اس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہم میں یہ خوبیاں ہوتی نہیں ہیں اور نعمتیں ہوتی ہیں، یہ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں لگی کہ نعمتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں لیکن روح کا پھل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ روح کا پھل جو ہے وہ اصل میں اظہار ہے روح القدس کی نعمت کا، روح القدس کے ہماری زندگی میں کام کرنے کا۔ اور زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کی طرف بڑی آرزو رکھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن روح کا پھل اپنی زندگی کے لیے نہیں مانگتے۔
रूह का फल हमारे किरदार में तब्दीली लाता है। जो फर्निश का लफ्ज है ना, फिर दोबारा से उसी लफ्ज की तरफ बार बार आज फर्निश के लफ्ज की तरफ जा रहे हैं, यानी गूंज के लफ्ज की तरफ। ग्रीक लफ्ज है, उसका मतलब ये है कि मामूर हो जाना। वो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में तब्दीली तब लाता है जब रूह का फल हमारी जिंदगी में, ये हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है, तब्दील कर देता है, बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। ये एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को बिल्कुल मुख्तलिफ, एक खूबसूरत जिंदगी वाला, जिसमें ऐसी तब्दीली आ जाए जो दूसरों के लिए फायदे का बायस हो। और वो 22वीं आयत में लिख करके 5वें बाब में, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ये भी 9 है, 9 खूबी है। जिस तरह रूह की नेमतें 9 है, जब हम उसे मांगते हैं तो ये रूह का फल जो है उसको जरूर मांगे कि हमारी जिंदगी में, हमारे किरदार में ये आ जाए। मेरे अजीजों, आज रूहुल कुदस के नज़ूल का दिन है। आज हम में से हर एक रूहुल कुदस के नज़ूल के दिन में जब हम इबादत के लिए जमा हुए हैं, ये दुआ करने की जरूरत है कि रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में काम करे। वो लोग जो आज गुनाह की हालत में हैं, उनके लिए दुआ करें कि रूहुल कुदस उनकी जिंदगी में काम करे, क्योंकि रूहुल कुदस का काम ये है कि वो गुनाह के बारे में आगाही दे, अदालत के बारे में, रास्तबाजी के बारे में बताए, लोगों को तैयार करें कि उन्हें तौबा की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी में रूहुल कुदस को मांगने की जरूरत है, ताकि रूहुल कुदस हमें तैयार करे, ताकि हम खुदावंद के साथ ताल्लुक में बढ़े, ताकि हम खुदावंद के नजदीक आए, तौबा के लिए तैयार हो सके, जिसके वसीले से हमारी जिंदगी रूहुल कुदस से भर जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, अपने जिस्म को संभालते हैं, हम मुख्तलिफ काम करते हैं जिससे हमारी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाए, लोग तारीफ करें। लेकिन जिसकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुदस है, उसकी जिंदगी खुद खूबसूरत हो जाती है। लोग भी तारीफ करते हैं क्योंकि उसका किरदार खूबसूरत हो जाता है, लोगों की जिंदगियां उसके वसीले से बरकत पाती। इसलिए अजीजों, आज आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं और रूहुल कुदस को मांगे, रूहुल कुदस की कुव्वत को मांगे, रूहुल कुदस के वसीले से रूह की नेमतों को मांगे, रूह का फल अपनी जिंदगी में मांगते हैं। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु ने जो वादा किया वो सच पर मबनी था, क्योंकि तेरे बेटे का हर एक वादा हाँ के साथ है। जो वादा, जो दावा यीशु ने किया वो पूरा हुआ। और रूहुल कुदस के बारे में इसने वादा किया कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो दूसरा बदलगा तुम्हें बख्शे। तेरा शुक्र हो रूहुल कुदस के तू इस दुनिया में आना हमारे दरमियान है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बेटे के यीशु के वादे को पूरा किया और आज रूहुल कुदस हमारे साथ है, जिसके वसीले से हम यीशु की गवाही देते हैं, जिसके वसीले से हम यीशु पर ईमान लाते हैं। खुदा हमें मजबूत कर, खुदाए पाकरू तुम्हें मजबूत कर, खुदाए पाकरू में मामूर कर दे, खुदाए पाकरू हमारे दिलों को मामूर कर दे, ताकि हमारे दिल तब्दील हो जाए, हमारी जिंदगियां बदल जाए, हमारी जिंदगियां अपने लिए और लोगों के लिए खूबसूरत बन जाए। खुदावंद तू हमारी मदद कर। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं सभी को छू खुदावंद, हम सबको रूहुल कुदस का तजर्बा दे, रूहुल कुदस की नेमतों का तजर्बा दे, रूहुल कुदस का फल जो है वो हमारी जिंदगी में काम करे, ताकि हमारा किरदार बदल जाए और लोग बरकत पाए। खुदावंद हमें छू, हमें बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 313। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे। गीत नंबर 313। जब अतवार की इबादत में क्योंकि जमा नहीं हो रहे, अगर आप अपने हदिया जात को देना चाहते हैं तो उन हदिया जात को जरूर महफूज रखते जाएं, ताकि जब आप खुदा के घर में आएंगे तो आप खुदा के घर में दे सकते हैं। गीत नंबर 313। Thank you.
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया और हम तेरी इबादत के लिए वक्त निकाल सके। दुआ करते हैं खुदावंद जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं बरकत दे, हम सबके साथ हो, हमारे घरानों के साथ हो। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, सारी कलीसिया यीशु के नाम में महफूज हो जाए। कोरोना वायरस, कोई बीमारी, परेशानी खुदावंद हमारे पास ना आए। तू हमारी हिफाजत कर, हमारे साथ हो, हमारे कामों इरादों में तेरी बरकत आ जाए, तेरा फजल हमारे साथ रहे और महफूज रह सके। खुदावंद हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बना, और दुआ करते हैं खुदावंद के हम दोबारा से इकट्ठे हो सके, इसके लिए तू हालात को तैयार कर। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ ही रहे, आमीन।